Mathura is an important place of Hindu pilgrimage. Mathura is known as the Brajabhumi, the land where Lord Krishna was born and spent his youth. The area is located on the banks of river Yamuna. The river Yamuna has been acclaimed as a holy river in Indian mythology. There is a lot of importance of these traditional water bodies here in Brij. ये भारतीय संस्कृति के मुताबिक प्रत्येक गांव में तालाब थे। वो तालाब इसलिए थे कि जिससे गांव का गंदा पानी जाए और इसलिए भी थे कि उसमें पशु भी पानी पीवे। इस तरह के तालाब हमारे यहाँ पहले थे। धीरे धीरे करके ये तालाबों का प्रचलन समाप्त होता चला गया। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पुनः एक जागृति पैदा हुई है। इसमें अनेक एनजीओ भी शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार भी अमृत सरोवर के नाम से बना रही है। Due to rapid growth, lack of maintenance and continued negligence in the last so many years, most of these kunds today have become silted and are nearing extinction. Decline in the groundwater levels along with water quality and waste mismanagement are the major problems in the area. जब से ये प्रदूषित पानी आगरा कैनाल में ओखला से या कहीं दूसरी जगह से जो आवे, यमुना के पानी नाम की तो कोई चीज ही नहीं। केमिकल के पानी अब हमारे कैनाल में, नहर में, रजवे में, माइनर में, यही पानी अब सबसे ज्यादा प्रदूषित कर रही है। मेरे गांव में दो तरह की फसलें होती हैं, गेहूं और धान। यहाँ जो पानी की समस्या है वहाँ आगरा कैनाल से आता है, लेकिन उसमें पानी दिल्ली और फरीदाबाद का गंदा पानी आता है, उससे और बीमारी फैलती है। खेतों में काम करके हम महिलाएं घर पे जाते हैं, बाल धोते हैं या फिर दूध की दही बनाते हैं, जो कुछ भी करते हैं उस पानी से नहीं हो पाता। खारे पानी की वजह से हम बहुत परेशान हैं। अगर यहाँ पे कोई साफ पानी, मीठा पानी का कोई पॉइंट बनाया जाए तो ये हमारी प्रॉब्लम सारी दूर हो जाए। तालाबों को खुदवा करके वर्षा ऋतु में जो पानी पड़ता है उसे हम इकट्ठा कर सकें, तो पानी इकट्ठा हो जाए तो हमारा जल स्तर ऊपर आए, तो हमारी फसलों भी अच्छी उगेंगी और पानी पीने के लिए भी बढ़िया मिलेगा। We have shortlisted the villages on these parameters for pilot intervention. There is an urgent need to implement measures for rejuvenation and creation of water bodies which has good potential for rainwater harvesting along with catchment area treatment. ADI initiated a comprehensive study of all the villages falls under Chhata Tehsil in order to understand the concern of the area and accordingly plan a long-term sustainable water resource development and management strategy. Environmental sustainability of the area remains our long-term focus. We identified various water bodies which used to collect the surface runoff and which have got a very extensive catchment areas from where the rainfall runoff water will come into these ponds. After identification of such water bodies, we conducted a detailed topographic survey of this area to understand the catchment and the actual impounding of these water bodies. Once we identified the actual impounding of these water bodies, we sat with the community, panchayat, community leaders. They said, if you expand these water bodies, if you deepen these water bodies, much of the water can be harvested, and they promised in the process they will take care of the maintenance in future also. Our efforts towards pilot interventions and further replication would improve the water quality, groundwater scenario, access to clean drinking water, and agricultural growth and production in area. The main objective is to contribute to creation of livelihoods with specific focus on water resource management. मैंने स्वयं भी देखा है कादोना में, जावली में, पूठरी में ADI ने जो तालाब बनाए हैं वो अच्छे तालाब बनाए हैं। गांव के किसान को इसलिए फ़ायदा होगा उससे कि जो तालाब का पानी है, पहले गांव में पूरे में खारी पानी था और जब से वो तालाब की खुदाई करके उसे पक्का बना दिया गया, आज पूरे गांव में मीठा पानी हो गया। तो तालाब के बनने से जल स्रोत ऊपर आता है। जल स्रोत ऊपर आने से खेती में किसानों को लाभ होता है। जल की समस्या विकट है हमारे सामने। ये जो आपने तालाब बनाया है, इससे हमारे जो 4 से 500 एकड़ ज़मीन है, इसमें तो हमारा वाटर लेवल ऊंचा आएगा ही। इससे हमारे लिए बहुत कुछ
माता रानी की कृपा से और ठाकुर जी की कृपा से हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा ही हुआ है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। अगर इस तरीका के तालाब गांव-गांव में निर्माण करा दिया जाए तो इससे वाटर लेवल जो आने वाली पीढ़ी के लिए लगातार परेशानी का सामना करना पड़ेगा और वाटर लेवल लगातार डाउन हो चला जा रहा है, उसके हमको बहुत राहत मिलेगी। जो तालाब बनाए जा रहे हैं, जैसे कब कादोना में या पूठरी में जो भी बने हैं, वो एक बहुत अच्छी बात यहाँ लागू करने की कोशिश करी जा रही है, जिससे सुधार होने की उम्मीद है। सब जगह अगर ऐसे तालाब बनाए जाएं तो लोगों की बहुत हद तक समस्या हल हो जाएगी। गाड़ियों को रोक करके भी वो लोग देखते हैं और पूछते हैं भाई किसने बनाया है, यार बहुत अच्छा बनाया है। ऐसा हमारे भी हो, आगे भी और अच्छे अच्छे कार्य हों बस्ती में। विकास हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट को उठाया और हमारे गाँव में लाए, उनके हम बहुत आभारी हैं। Regular monitoring is being done by measuring rainfall through installed rain gauges. Our focus remains on orienting, sensitizing and building capacities of local stakeholders. मैं इनको ट्रेनिंग दे रही हूँ फिलहाल साबुन के बारे में। वो महिलाएं इस बात से उत्सुक हैं और वो इसमें दिलचस्पी भी बहुत ले रही हैं, इंटरेस्ट भी ले रही हैं और वो आगे अपने बढ़ावे के लिए, पैसा जोड़ने के लिए, साबुन के लिए वो प्रोडक्ट वगैरह मंगाने के लिए बोल रही हैं और वो अपना साबुन बनाना चाहती हैं। 7 महीना से शंभू चल रहा हमारा। आज हमें साबुन की ट्रेनिंग मिली है, उसमें अच्छा भी लगा हमें और आगे चल के हमें और भी काम मिलेंगे और उससे हमारा रोजगार चलेगा। We believe that the pilot intervention would provide an opportunity for the government and other important stakeholders in the sector for further replication on large scale that would enrich the environmental and socio-cultural heritage of Braj. एक जो अभी आप लोगों ने तालाब बनाए हैं, उनमें गांव का जो नालियों का गंदा पानी आएगा वो अलग है और जो वर्षा का स्वच्छ जल होगा वो अलग है। इससे एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। मैं NDI को बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये उनसे अनुरोध भी करता हूँ कि और भी तालाब हमारे यहाँ बनाने का कष्ट करें। Our approach would provide growth with social justice, coupled with appropriate technology and due care of environment as a direction for future for sustainable development.